الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين عليهم السلام. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. سبحان اللہ. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم وشفيع المذنبين وعنيس الغريبين ورحمة للعالمين. سبحان اللہ. آني على عبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم من ولادة الأنبياء قيام يوم الدين. جيو أما بعد فقد قال الإمام الجعفر بن إمام محمد باقر عليه السلام إن لفاطمة تسعة أسماء صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خطبہ کرام کی کثرت کی وجہ سے انتہائی مختصر وقت کے لیے تیاری کر کے آیا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اب خطبہ کرام نہ آئے تو ان کی اپنی مرضی. انشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں آپ لوگوں کی زحمت احسامات ختم کروں گا. بسم اللہ. میں نے سرنامہ کلام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کو قرار دیا ہے جیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ. ماشاءاللہ. سیدہ زہرا میری جدہ کے لیے اللہ نے 9 اسماء منتخب کیے اور 9 اسماء اللہ نے رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس میں تفصیلاً گفتگو کی جائے تو کافی وقت درکار ہے، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کرتے ہوئے گزر جاؤں گا. بسم اللہ. کہ اللہ رب العزت نے بعض انبیاء علیہ السلام کے بھی نام رکھے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پنجدل پاک کے بھی نام رکھے. اور کب رکھے؟ اس وقت رکھے جب پنجدل پاک کے انوار کو خلق کیا گیا. واہ 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 واہ. اللہ رب العزت نے پنجدل پاک کے انوار کو خلق فرمایا. اب سیدہ زہرا کو فضیلت کیا حاصل ہے تاکہ پنجدل پاک سے بھی امتیاز اور خصوصیت سیدہ زہرا کو حاصل ہے کہ پنجدل پاک میں سے جو باقی 4 تن ہیں، جو باقی 4 شخصیات ہیں، جو باقی 4 عصمت کی مالک شخصیات ہیں، ان کا بھی ایک نام وضع کیا خدا نے اور رکھا ہے. لیکن سیدہ زہرا کے لیے 9 نام تجویز کیے اور رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ زہرا کے نام رکھنے میں وجہ کیا ہے یا باقی ایک نام رکھنے میں فرق جو ہے وہ کیا ہے، یہ تو کتابیں بھری پڑی ہیں اور تفصیلات موجود ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ذکر کریں گے. واہ واہ. میں بس چھوٹی سی زحمت دوں گا اور اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. آپ اور میرا کسی کا نام رکھنا الگ چیز ہے.
جو अलग बात है। हमने अगर किसी का नाम फाजिल रख दिया लेकिन वो बेचारा सारी जिंदगी जाहिल रहा, हा 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 हमने किसी का नाम जाहिद रख दिया लेकिन वो बेचारा दुनिया में मैं वो मगन रहा, वाह वाह दुनिया से बेजारी इख्तियार ना कर सका। ये आपका और मेरा नाम रखना है। नाम और साहिब नाम में, इस्म और मुसम्मा में कोई मुताबिकत और मुनासबत नहीं पाई जाती। वाह 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 लेकिन मेरे परवरदिगार आलम ने, मेरे करीम रब ने जब भी नाम रखा, उसने साहिब नाम और नाम के बीच में मुनासबत को देखा, क्या बात। मुताबिकत को देखा, उसके बाद नाम रखा। अब जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्म और मुसम्मा को देखा और उसके बाद नाम रखने शुरू कर दिया। मसलन अगर किसी को लायक तारीफ समझा तो उसका नाम मोहम्मद रख दिया। वाह 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 अगर किसी के अंदर पूरी कायनात की खूबियां और खसूसियात समेटी हुई देखी तो उसका नाम अली रख दिया। जो और इसी तरह अगर किसी को जहन्नम की आग से निजात दहिंदा पाया तो उसका नाम फातिमा रख दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब सैयदा के 9 नाम रखे। हम इंशाल्लाह सिर्फ इब्तिदाई एक नाम जिक्र करके ज़ामते खत्म करेंगे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि हमने जिक्र किया कि हम जो नाम रखते हैं वो नाम, उन नामों में और साहिब नाम में कोई मुताबिकत और मुनासबत नहीं पाई जाती। 2-3 मिसालें दी। मसलन मैंने नाम रखा किसी का असद, लेकिन वो दुनिया का बुज़दिल तरीन इंसान था। और इसके साथ साथ सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम रखने में क्या वजह है? फातिमा जो पहला नाम मशहूर तरीन और मारूफ तरीन नाम है, उसके लिए बाद साहबियों ने और बाद मोमिनीन ने पैगंबर खुदा और दीगर अइम्मा अलैहिस्सलाम से वजूहात पूछी कि अल्लाह ने सैयदा का नाम फातिमा क्यों रखा? वाह 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 वाह। मशहूर और मारूफ है। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं, फकत 2 वजह जिक्र करके माशाअल्लाह साहिब की तरफ माशाअल्लाह। आऊंगा। पहली बात ये है कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदा का नाम फातिमा इसलिए रखा क्योंकि मेरी फातिमा, मेरी ज़ुर्रियत और मेरी फातिमा के शियों और मेरी फातिमा से मोहब्बत करने वालों पर अल्लाह ने जहन्नम को हराम करा। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनसे जहन्नम को दूर रखा और मेरी फातिमा अपने शियों को, अपने मुहिब्बीन को जहन्नम की आग से निजात दिलाएगी। माशाअल्लाह पहली माशाअल्लाह। ये वजह मिली। और दूसरी जो बहुत अहम और जो जिसको हम भी दर्क नहीं कर सके, यानी जो फातिमा के मुहिब्बीन हैं वो भी दर्क नहीं कर सके, वो ये है कि फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का नाम फातिमा क्यों रखा? फातिमा का माना ये दूसरी बात में बयान किया जाता है कि फातिमा वो है जिसकी मार्फत जिन्नो इंस भी न कर सके। वाह 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 वाह। हत्ता कि मलाइका भी जिसकी मार्फत तक न पहुंच सके, जिब्राइल, इसराफील, हत्ता कि मीकाईल भी जिसकी मार्फत न पहचान सके। वाह वाह वाह। अजमत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद तर सलावत। आप और मैं कौन जो सैयदा की मार्फत रखते हैं। वाह 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 वाह। सैयदा क्योंकि ये जो अयाम मुनासबत हैं, जो अयाम चल रहे हैं उस हस्ती के मुतालिक चल रहे हैं जो कायनात की मुकद्दस तरीन हस्ती है, जिसके घर को असरार इलाही का मरकज करार दिया, आहा सुभान अल्लाह। जिसके घर में इल्म रखा गया, जिसके घर में इस्मत रखी गई, जिसके घर में इमामत रखी गई, वो मुकद्दस तरीन शख्सियत के ये आयाम चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। कौन सैयदा? जो जन्नत में रहने वाले सबकी मलका है, जो मिसाइल आलमीन है, वाह वाह वाह। वो फातिमा, जिसके लिए पैगंबर खुदा उठ जाया करते थे, सुभान अल्लाह। वो फातिमा। हम और आप उसकी अजमत को, उसकी मार्फत को कैसे दर्क करें? सुभान अल्लाह सुभान। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में पैगंबर खुदा अपनी जाने से 6 माह कबल
आया करते, जब भी दरवाजा सैयदा पे आया करते थे तो चंद अल्फाजों की तिलावत किया करते थे। अस्सलामु अलैका या अहल बैत नबुवा व मादिनुर रिसाला। वाह वाह और इसके बाद जो जुमला सुनिएगा, जो लफ्ज पैगंबर खुदा इस्तेमाल किया करते थे, कमाल जुमला है, अगर हम समझ गए तो हमारे लिए काफी है। वह मुख्तलफुल मलाइका, वाह वाह मलाइका के आने जाने की जगह जहाँ मलाइका आते जाते हैं। देखिए सैयदा का वजूद मुकद्दस मलाइका के आने का सबब है, मलाइका के आने जाने का सबब है। ये थी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब इतनी मुकद्दस शख्सियत के बावजूद सैयदा ज़हरा को क्या अजर दिया गया, क्या उसको बादस पैगंबर उसका ख्याल रखा गया। ये नौबत आ गई कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बाल बिखेर दिए, सियाह चादर ओढ़ ली, तुरबत पैगंबर पर गई, सिराने कब्र मुताहरे रसूल खुदा बैठ गई और बैठ कर कहती हैं, बाबा अस्सलाम अलैका या आबता, ऐ मेरे बाबा तुझ पर मेरा सलाम हो। इसके कहने के बाद क्या कहती है, सुनोगे जुमला। बस मैंने एक जुमला कहा, मुकद्दमाती आप लोगों की आंखों में आंसू आ गए। ये तो सैयदा की मुसीबत भी नहीं बयान की, जो सैयदा के ऊपर टूटी मुसीबतें। बीवी क्या कहती हैं, बीवी कहती है कि बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अयाम सिरना लिया। बाबा तेरे जाने के बाद ऐसी मुसीबतें टूटी, अगर वो रोशन दिनों पर पड़ती तो रोशन दिन तारीख रातों में तब्दील हो जाते। बाबा यहाँ बात खत्म ना हुई, बाबा अगर वो मुसीबतें पहाड़ों पर पड़ती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, बाबा पहाड़ चकनाचूर हो जाते। बाबा इतनी मुसीबतें पड़ी। बस भैया दादारो, सुबह होती है तो बीबी अपने बाप को रोती है, दोपहर होती है तो बीबी अपने बाप को रोती है, शाम होती है तो बीबी अपने बाबा को रोती है, सारा सारा दिन बीबी अपने बाबा को रोती। बस बीबी का यही बाबा के जाने के बाद काम था। क्या हुआ कि ये रोना भी बाबा की उम्मत को पसंद ना आया। एक दिन मदीना वालों की तरफ से पैगाम मिला कि बिनते पैगंबर को कह रहे हैं कि सैयदा आपने रोने का वक्त मुअय्यन करें, हमारे कारोबार दुनियावी में खलल पड़ता है। बिनते पैगंबर क्या कहती है, या अबुल हसन, ए अबुल हसन, ये बाबा के जो उम्मती हैं, बाबा के जो हैं, इनको कह दें कि आपके नबी की बेटी बस चंद दिन के लिए ही आप लोगों को ज़हमत देगी, चंद दिन के लिए ही ये तकलीफ देगी, उसके बाद बीबी चली जाएगी। बीबी ने ठंडी सांस भर के ये कहा, और कहने के बाद बीबी ने वक्त मुअय्यन कर लिया, बैतुल हुज़्न तैयार हो गया। बीबी सुबह बच्चों को लेकर चली जाती, दोपहर को वापस लेकर आती, खाना खाते, फिर चली जाती, फिर शाम को आते। बैतुल हुज़्न अमीरुल मोमिनीन ने तैयार कर दिया। आ गया वक्त पे सैयदा ज़हरा का। अब सैयदा ज़हरा ने अली को बुला लिया, ए अली अब मेरा वक्त आ गया है, मैं चाहती हूँ कि हम आखिरी वक्त चंद एक बातें कर लें। जनाब सैयदा ने वसीयतें शुरू की अली को, अली ने जनाब सैयदा को वसीयतें की, एक दूसरे की वसीयतें कबूल कर ली। मैं यहाँ कहूँगा, ए कमीनों, ए जालिमों, सैयदा इस बारे नहीं गई थी जो उससे मनसब छीना गया, जो उससे बाग छीना गया, वो तो बस तरीन चीज थी। जालिमों, आपने ये ना देखा कि वो मुकद्दस तरीन दरवाजा, जिस दरवाजे से आप लोग खाते रहे, जिस दरवाजे से आप लोगों को रिस्क मिलता रहा, उस दरवाजे की इतनी हुर्मत। आखिर वजह क्या थी सैयदा की? वजह यही थी कि सैयदा दरबार गई, सैयदा का दरबार जाना, ये सैयदा को अब
वसीयतें कर ली, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, मुझे समझ नहीं आया और मैं आपसे भी यही अर्ज करूँगा कि आप भी समझने की कोशिश ना कीजिएगा, बस ज़हन में रखिएगा कि सैयदा ने तमाम वसीयतें की। बीबी ने अपने कफन की वसीयत की, दफन की वसीयत की, हत्ता कि यहाँ तक हनूत की वसीयत की, ये भी कहा कि मेरा जनाजा इतने बजे उठाना, इस वक्त उठाना, ये भी वसीयत की। हुसैन से भी गुफ्तगू की, सैयदा ज़ैनब से गुफ्तगू की, लेकिन मुझे समझ नहीं आया सैयदा ने ये क्यों ना कहा कि मुझे ए अली, मुझे बाबा के पहलू में दफन कर देना, ए अली मुझे अपने बाप के साथ दफन कर देना। ये सैयद ने क्यों नहीं कहा हजरत अली को? मैं कहूँगा इमाम हसन ने तो सिर्फ ख्वाहिश की थी ना, ए भाई अगर इजाजत मिल जाए तो मुझे नाना के पहलू में दफन कर देना। लेकिन ये ज़हरा थी, ये मुहाफिज थी, ये जानती थी अगर मैं आज ऐलान करके चली गई तो कल मेरी कब्र को खोद कर निकाल दिया जाएगा और बाबा की भी बेइज्जती होगी। ये बीबी मुहाफिजा दीन थी, मुहाफिजा शरीयत थी। बीबी ने ये वसीयत ना की। बस आज़ादारो, बीबी के इंतकाल का वक्त करीब आ गया। हसन हुसैन बाहर थे, बीबी बाबा से मुलाकात को चली गई। अब जब हसन हुसैन आते हैं ना तो देखते हैं सेहन में, दालान में बीबी नजर नहीं आती। हसन हुसैन हुजरे में आते हैं, कमरे में आते हैं, देखते हैं सैयदा इंतकाल फरमा चुकी हैं, आंखें बंद हैं। हुसैन ने आवाज दी, अम्मा अम्मा आंखें खोलो। बीबी ने आंखें नहीं खोली। हुसैन दूसरी मर्तबा कहते हैं, अम्मा अम्मा आंखें खोलो, मैं हुसैन। बीबी ने आवाज नहीं दी। जब तीसरी मर्तबा हुसैन का ये वक्त आया तो हुसैन माँ के सीने पे गिर पड़े। क्या कहते हैं, अम्मा आंखें खोलो। बीबी ने हुसैन को अपने सीने से लगा लिया, दोनों बाहें बेटे के गले में डालकर कहा, या अबा अब्दुल्ला सब्रन, या अबा अब्दुल्ला, ए अबा अब्दुल्ला सब्र कीजिए, तेरी ज़ुरियत में, तेरी नस्ल में सब्र और वफा को रख दिया गया है। या अबा अब्दुल्ला सब्र कीजिए। बस भी अज़ादारो, ज़हमत समात खत्म करूं। जनाजा तैयार कर दिया गया सैयदा का। सैयदा की वसीयत के मुताबिक दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद अली क्या कहते हैं, ए पैगंबर, ए रसूल खुदा, जैसे आपने सही सालिम मुझे अमानत दी थी, मैं आपको ना पलटा सका, मुझे माफ करना। ये जुमले हजरत अली ने जब सुपुर्द खाक किया ज़हरा को उस वक्त कहा। अब दूसरा दिन हुआ, मदीने में सैयदा की रेलत की खबरें पहुंचना शुरू हो गई। मदीना सुनसान हो गया, मदीना उदास हो गया। क्या हुआ कि मदीने की औरतों तक जब खबर पहुंची है तो मदीने की औरतें क्या कहती हैं, अपने मर्दों से गिला करती हैं, भय हो आप लोगों पर, खाक हो आप लोगों पर कि बिन्ते पैगंबर अब बाबा को रोते रोते चली गई। बिन्ते पैगंबर आज मदीना छोड़ गई। बिन्ते पैगंबर अब मर गई। अब बाबा को रोने वाली चली गई। अब बाबा को रोने वाला कोई नहीं रहा, वो चली गई। वाह हो आप लोगों पर कि रसूल की बेटी दुनिया से गई और आप लोगों को पता तक नहीं चला। ये कहना था। मदीना के लोग आए अली के पास, अली को कहते हैं कि हमें कब्र, निशान कब्र बताया जाए। अली ने इनकार किया। वो सारे बकी की तरफ रवाना हुए। बकी जाते हैं, कब्र को खोदना चाहते हैं। गुलामों ने देखा और उन्होंने हजरत अली तक खबर पहुंचाई कि ये लोग, उनका कष्ट यही था कि हम सैयदा के नमाज जनाजा पढ़ेंगे और फिर दोबारा दफना देंगे। वो इसी नियत से निकालना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही खबर अली तक पहुंची, अली ने तलवार को खींचा और जलाल में आकर रवाना हुए जन्नतुल बकी की तरफ। और क्या कहते हैं उनको मुखातिब होकर, अली कहते हैं
کہ میرے گلے میں رسی بندھی گئی میں نے صبر کیا، سیدہ کے پہلو کو زخمی کیا میں نے صبر کیا، میرے محسن کو شہید کیا گیا میں نے صبر کیا، میرے زہرا کے حق کو چھینا گیا میں نے صبر کیا، لیکن اب اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، اگر زہرا کی قبر کی بے ادبی کی گئی، اگر زہرا کی تربت کی بے ادبی کی گئی تو میں ایسے تلوار کھینچوں گا کہ مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا، پھر لوگ کہیں گے کہ علی نے ایسے بدلہ لیا کہ کبھی ایسے بدلہ کسی نے نہ لیا ہو۔